Very good afternoon, students. Now we comes on fifth lecture of that successive differentiation. What we have seen in previous lectures, we have seen some problems which are based on the standard result, which is that standard result that is e raised to x into cos of bx plus c or e raised to x into sin of bx plus c. How we get its nth derivative? आप सब लोगों को पता है कि इसका रिजल्ट क्या रहता है? That is e raised to x. Here is a in bracket a square plus b square raised to the power n by 2. Here is a cos of bx plus c plus n into tan inverse of b by a. So that is the result for that function e raised to x cos of bx plus c if we take its nth derivative. And now we see one more problem on that same result. बट हियर इज अ फंक्शन y इक्वल्स टू cos h ऑफ 4x cos 3x. अब आप लोग बोलेंगे मैडम यहाँ पे तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं है, बट वी कैन कन्वर्ट दैट हाइपरबोलिक दैट इज cos h ऑफ 4x इनटू एक्सपोनेंशियल फंक्शन. अब यहाँ पे कौन सा रिलेशन हम लोग यूज करेंगे? एज वी हैव द रिलेशन बिटवीन दैट हाइपरबोलिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन दैट इज cos hx कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म दैट इज e raised to x plus e raised to minus x by 2. अब हमारे पास कौन सा फंक्शन है? दैट इज cos h ऑफ 4x. यहाँ पे सिंपली x की जगह क्या है? 4 है, तो यहाँ पे चेंजेस क्या हो जाएंगे? यहाँ पे आ जाएगा e raised to 4x plus e raised to minus 4x by 2. So you can write your cos h of 4x in this way, and that's why that convert into exponential form. So यहाँ पे अब हम क्या लिखेंगे? We write here in terms of exponential form of that function. So if you consider the solution, in that we take that y equals to, we simply replace here that by exponential, that is e raised to 4x plus e raised to minus 4x by 2, और ये जो cos 3x है we put that as it is. अब उसके बाद क्या करेंगे हम? We separate the terms. तो यहाँ पे दो फंक्शन के फॉर्म में आपकी टर्म कन्वर्ट हो जाएंगी. First is e raised to 4x into cos 3x, so it can be written as e raised to 4x into cos 3x plus second e raised to minus 4x into cos of 3x. अब जैसे मैंने previous step में आप लोगों को रिजल्ट बताया कि how we get the nth derivative for that. उसके बाद we differentiate. How many times? We differentiate with respect to x for n times. We differentiate that function with respect to x for n time. So that can be written as yn is equals to, that 1 by 2 is a constant here. Here we write the first term, that is e raised to 4x into cos of 3x. Its nth derivative plus second function है हमारे पास e raised to minus 4x cos of 3x. Its nth derivative. अब जैसे मैंने आप लोगों को रिजल्ट बताया था प्रीवियस स्टेप में, एक बार और लगे तो रिवाइज कर लेते हैं यहाँ पे. दैट इज e raised to x cos of bx plus c and its nth derivative. So what is the result then? That is equals to e raised to x, here is a square plus b square raised to the power n by 2 into cos of bx plus c plus n into tan inverse of b by a. तो ये जो रिजल्ट है, you have to use that result for that both functions because both are in this form, that is e raised to x into cos of bx plus c. ऐसे फॉर्म में हमारे फंक्शन है. सिंपली you have to compare with a and b. अगर a के साथ यहाँ पे फर्स्ट टर्म में कंपेयर करेंगे तो a की जगह यहाँ पे 4 है और b की जगह क्या है? yes 3 है. So you can write nth derivative yn is equals to, that is 1 by 2, और यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे कर्ली प्रेस करते हैं हम, फर्स्ट टर्म का nth डेरिवेटिव लेंगे सबसे पहले. सो इट कैन बी रिटन एज e raised to 4x, यहाँ पे आ जाएगा फिर ब्रैकेट में a स्क्वायर की जगह 4 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दैट इज 3 स्क्वायर raised to the power n by 2, देन cos of 3x प्लस n into tan inverse of क्या रहता है? b by a. तो b है हमारा 3 और a हमारा 4, सो tan इनवर्स ऑफ 3 by 4. सो ये तो हो गया हमारे पहले टर्म का रिजल्ट.
इसको स्क्वायर ब्रैकेट में ले लेते हैं. देन वी राइट द रिजल्ट फॉर अ सेकंड टर्म ऑफ nth डेरिवेटिव. तो यहाँ पे हमारी टर्म है e रेज़ टू माइनस 4x. ब्रैकेट में क्या आएगा फिर? हियर a की जगह -4 है और b की जगह 3 है. सो a स्क्वायर दैट इज -4 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दैट इज 3 स्क्वायर. यहाँ पे आएगा 3 स्क्वायर रेज़ टू द पावर n बाय 2. यहाँ पे cos ऑफ 3x प्लस n इनटू tan इनवर्स ऑफ, यहाँ पे क्या होगा 3 एज इट इज रहेगा बट यहाँ पे -4 है. सो इट बिकम -3/4. So we write in this way. Again we complete that bracket and that whole function is covered in that curly brace. So in this way we write the nth derivative for that both the functions. और इसको सिंप्लीफाई करेंगे. यहाँ पे 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर दैट इज 16 प्लस 9 इट बिकम 25. यहाँ पे भी 16 प्लस 9 वो हो जाएगा 25. यहाँ पे रहेगा e raised to 4x then that term plus e raised to minus 4x into that term. So we see on that side. Now we write that same step here. Simplify form में लिखेंगे यहाँ पे हम simplified form में. So y equals to 1/2 is here. Here is a e raised to 4x. अब यहाँ पे जैसे हमने देखा था कि दोनों टर्म में इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू सेम आती है. हियर 4 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर दैट इज 16 प्लस 9 इट बिकम 25. यहाँ पे भी क्या होगा -4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर दैट इज अगेन 16 प्लस 9 दैट इज अगेन 25 हैविंग द पावर रेज़ टू n/2. तो ये जो दोनों टर्म है ये दोनों टर्म इस फर्स्ट टर्म में और सेकंड टर्म में क्या है कॉमन है. सो इसे हम सबसे पहले लिख लेते हैं दैट इज 25 रेज़ टू द पावर n/2 और उसके बाद लिखेंगे रिमेनिंग टर्म्स. तो फिर अब रिमेनिंग टर्म्स क्या होंगी आपकी दैट इज e रेज़ टू 4x. हियर इज अ cos ऑफ 3x प्लस n इनटू tan इनवर्स ऑफ 3/4. ये हो गए फर्स्ट. देन कंप्लीट ब्रैकेट में लिख लें सेकंड टर्म प्लस e रेज़ टू माइनस 4x इनटू cos ऑफ 3x प्लस n इनटू tan इनवर्स ऑफ -3/4. एंड हियर वी कंप्लीट दैट कर्ली ब्रेस. एक बार ध्यान से देख लो इस स्टेप को. If you see that term 25 raised to the power n/2 we can simplify that. It is 25 raised to n/2. How we can write that 25 raised to n/2 that can be written as 25 as a 5 square. So 5 square raised to the power n/2. So what happened here? 2 to get cancel and simply here is remaining 5 raised to n. So we can replace that 25 raised to n/2 by 5 raised to n. How we replace that? That 25 written in the form of 5 square. So here is a 5 square raised to the power n/2. 2 to get cancel and 5 raised to n. So we write here also that so 1/2. Here is a 5 raised to n. Here e raised to 4x cos of 3x plus n into tan inverse of 3/4 plus e raised to minus 4x. Here is a cos of 3x plus n into tan inverse of -3/4. Here we complete that bracket and here is that curly brace is also completed. So that is all about that nth derivative of that function. We have simply here converted that hyperbolic function into trigonometric and then we reuse that result of e raised to x into cos dx. So hope you understand that all problems. यहाँ पे curly brace लिए हमने complete करने के लिए that bracket and that problem is here completed. एक बार अच्छे से देख लो इसे. In previous lectures we have seen the nth derivative problems which is based on that standard result, which is that
if your function should be in the form of 1 upon ax plus b. अगर ऐसे फॉर्म में आपका फंक्शन है, so we write the nth derivative for that function, that should be equals to minus 1 raised to n factorial a raised to n upon ax plus b raised to n plus 1. अब कुछ प्रॉब्लम जो है based on that formula we will continue that in this lecture. अब before that we will see one note. अगर आपके प्रॉब्लम अगर फ्रैक्शन के फॉर्म में आ रहा है, मतलब न्यूमरेटर में भी फंक्शन है x का और डिनोमिनेटर में भी फंक्शन है, ऐसे फॉर्म में अगर आपके प्रॉब्लम आ रहा है f of x अपॉन g of x की फॉर्म में, सो हाउ टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम. तो अब एक बात यहाँ पे ध्यान रखना कि अगर ऐसे फॉर्म में आपका फंक्शन है, सो यू हैव टू चेक द डिग्री ऑफ न्यूमरेटर एज वेल एज डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर. अगर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर आपकी ग्रेटर रहेगी और या इक्वल्स टू रहेंगी डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से, डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर. तो एक बात हमेशा ध्यान रखना कि अगर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, then in that case what you have to use, you have to use division method. You have to use the division method to separate that type of fractions. Otherwise if ये एक केस है, सेकंड केस में अगर if degree of numerator is less than degree of denominator, अगर न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से लेस आ रही है, फंक्शन इस फॉर्म में है, सो व्हाट यू हैव टू यूज इन दैट केस, यू हैव टू यूज पार्शियल फ्रैक्शन मेथड. यू हैव टू यूज द पार्शियल फ्रैक्शन मेथड. सो रिमेंबर दैट थिंग, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट when you are solving this type of problems, when there is a your function should be in this form f of x upon g of x, और आपको उसकी डिग्री चेक करनी पड़ेगी वहां पे, and then you have to choose the method, that is you have to use here a division method or use the partial fraction method. So if we understand that note, and now we continue with that problem. Here I have written that problem. Find the nth derivative of y equals to x upon 1 minus 4x square into 3x minus 5. So I will continue then on this side. ये प्रॉब्लम यहाँ पे हम कंटिन्यू करते हैं. We write here the solution. We have given the function y equals to x upon, here is a 1 minus 4x square into 3x minus 5. अब सबसे पहले तो हम इसकी डिग्री चेक करेंगे. अब न्यूमरेटर की डिग्री यहाँ पे x की सिंगल टर्म है तो यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे अगर डिनोमिनेटर देखा जाए तो यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पे x है, तो यहाँ पे 3 हो जाएंगे, x क्यूब हो जाएगा हाईएस्ट पावर x का. सो द डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज 1, डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर इज 3. सो यहाँ पे क्या हो गया, व्हाट इज द केस हियर, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर क्या हो गई, इट बिकम अ लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर. अगर ऐसे फॉर्म में है हमारा फंक्शन, सो व्हाट यू हैव टू यूज, यस ऑब्वियसली वी हैव टू यूज हियर पार्शियल फ्रैक्शन मेथड. वी हैव टू यूज हियर पार्शियल फ्रैक्शन मेथड बिकॉज डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर. इसकी डिग्री 1 है, यहाँ पे 3 है. तो आप सबसे पहले तो इसको सेपरेट करने पड़ेंगे फैक्टर्स को. पार्शियल फ्रैक्शन से सेपरेट करने के लिए यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे. y इक्वल्स टू न्यूमरेटर का x तो हम एज इट इज रखेंगे. व्हाट अबाउट दैट डिनोमिनेटर, इफ यू सी दैट फैक्टर 3x minus 5, ये तो लीनियर फैक्टर है फर्स्ट डिग्री का, बट व्हाट अबाउट दैट, इट इज अ क्वाड्रेटिक फैक्टर. अब अगर इस फैक्टर को आप ध्यान से देखेंगे 1 minus 4x square, तो ये कौन से फॉर्म में आ रहा है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ a square minus b square के फॉर्म में. ये फैक्टर यहाँ पे a square की जगह 1 square और b square की जगह यहाँ पे है 4x square. तो वो जो 4x square है दैट कैन बी रिटन एज आल्सो 2x होल स्क्वायर. इसको हम 4x square को ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज 2x होल स्क्वायर, दैट इज आवर b इज हियर 2x एंड a इज हियर 1. सो a फैक्टर क्या हो जाएगा, जैसे हमने बताया कि a square minus b square कैन बी रिटन एज a minus b into a plus b. ऐसे फॉर्म में हम लिखते हैं a square minus b square. सो ऑब्वियसली यहाँ पे भी क्या होगा, 1 minus 2x into 1 plus 2x. ये जो फैक्टर है 1 minus 4x square, we can write in this way, that is 1 minus 2x whole square, and that is in the form of a square minus b square, and that's why we write a minus b a plus b. So उस फैक्टर को हम इस फॉर्म में लिखेंगे 1 minus 2x into 1 plus 2x.
और लास्ट का हमारा लीनियर फैक्टर है 3x माइनस 5. सो इन दिस वे वी हैव सेपरेट द फैक्टर्स. अब सभी फैक्टर्स हमारे कौन से फॉर्म में आ गए? लीनियर फॉर्म में आ गए हैं. तो उसको सेपरेट करेंगे. सो हाउ वी राइट दैट? y इक्वल्स टू a अपॉन दैट 1 माइनस 2x प्लस b अपॉन 1 प्लस 2x प्लस c अपॉन 3x minus 5. So how you calculate that? A, B, C. You will see on that side. So we write here y equals to. अब जो a की वैल्यू हमें निकालनी है, so you have to concentrate on that function. यहाँ पे अगर देखोगे तो a के डिनोमिनेटर में क्या है? 1 minus 2x. So you have to consider from that function the terms other than that 1 minus 2x. 1 minus 2x के अदर देन टर्म्स हमारे पास क्या है? x अपॉन 1 प्लस 2x 3x माइनस 5. सो वी राइट हियर फॉर दैट a दैट इज x अपॉन 1 प्लस 2x इनटू हियर इज अ 3x माइनस 5. जो टर्म डिनोमिनेटर में आती है वी ओमिट दैट टर्म. अब डिनोमिनेटर में टर्म कौन सी है हमारी? 1 माइनस 2x. वी राइट दैट एज इट इज. अब यहाँ पे हम x की वैल्यू क्या पुट करेंगे? हम यहाँ पे x की वैल्यू वो पुट करेंगे जिसके लिए आपका ये डिनोमिनेटर 0 होता है. अब हमें पता है कि इफ वी पुट x इज इक्वल्स टू 1/2, अगर यहाँ पे हम 1/2 पुट करते हैं तो 2 into 1/2 या 2 get cancel, there is remaining -1 and 1 minus 1 become a 0. सो कौन से वैल्यू के लिए x के यहाँ पे डिनोमिनेटर 0 हो रहा है? फॉर x इज इक्वल्स टू 1/2. सो वी हैव टू पुट हियर x इज इक्वल्स टू 1/2 फॉर दैट फंक्शन इन अ न्यूमरेटर. उसके बाद प्लस सेकंड टर्म हम लिखेंगे. सेकंड टर्म हमारे पास क्या है? हियर द डिनोमिनेटर इज अ 1 प्लस 2x. अब न्यूमरेटर में क्या आएगा? मतलब b की जगह क्या आएगा? द टर्म ऑफ दैट होल फंक्शन अदर देन 1 प्लस 2x. 1 प्लस 2x अदर देन वैल्यू ऑफ दैट फंक्शन दैट इज हियर इज अ x इन अ न्यूमरेटर. डिनोमिनेटर में रहेगा 1 माइनस 2x इनटू 3x minus 5. Here is the bracket complete. अब यहाँ पे हम x की वैल्यू कौन सी पुट करेंगे? जिसके लिए ये डिनोमिनेटर 0 होगा. When you put here x is equals to what we put? -1/2. अगर यहाँ पे x is equals to आप -1/2 पुट कर रहे हैं तो 2 get cancel. There is remaining a -1 and 1 minus 1 both get a cancel. It become a 0. So you have to put here x is equals to -1/2. Then next is a प्लस थर्ड टर्म. यहाँ पे डिनोमिनेटर में है c के डिनोमिनेटर में 3x माइनस 5. सो हाउ यू कैलकुलेट द c देन? c कैलकुलेट करने के लिए अगेन यू हैव टू कंसीडर फ्रॉम द होल फंक्शन द टर्म्स अदर देन दैट डिनोमिनेटर 3x माइनस 5. तो 3x माइनस 5 के अलावा जो टर्म्स है विच इज दैट 1 माइनस 2x इनटू 1 प्लस 2x. सो ये पुट इट. व्हाट अबाउट द वैल्यू ऑफ x हियर? अब यहाँ पे देखो x की कौन सी वैल्यू आप पुट करेंगे तो डिनोमिनेटर 0 होगा. व्हेन यू पुट x इज इक्वल्स टू 5/3. व्हेन यू पुट x इज इक्वल्स टू 5/3. अगर यहाँ पे 5/3 पुट करेंगे तो 3 गेट कैंसिल. 5 minus 5 इट बिकम 0. सो यहाँ पे हम पुट करेंगे 5/3. x इज इक्वल्स टू 5/3. In this way we write that the values of a, b, c in this form. And now one by one we put here. अब सबसे पहले हम देखेंगे a की वैल्यू हाउ वी कैलकुलेट. यहाँ पे क्या है? a के लिए a इज इक्वल्स टू हमने पुट किया x अपॉन 1 प्लस 2x देन 3x माइनस 5. यहाँ पे वैल्यू हमने ली थी x इज इक्वल्स टू 1/2. अब जब हम x इज इक्वल्स टू 1/2 से रिप्लेस करेंगे x को तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 1/2. डिनोमिनेटर में क्या होगा? 1/2 into 2. So 2 get cancel. Here is remaining 1. 1 plus 1 यहाँ पे हो जाएगा आपका 2. यहाँ पे 3 into 1/2 तो ये हो जाएगा आपका 3/2 minus 5. यहाँ पे हो जाएगा 3/2 minus 5. So what we get finally? A is equals to 3 minus that 10. So 3 minus 10 that is a minus 7/2. तो ये हो जाएगा आपका minus 7/2. So A is equals to we write here is a 1/2, here is a that 2 और यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लेके तो 3 minus 10/2 that is 3 minus 10 is a minus 7/2. So we write here minus 7/2
that 2 to get cancel here. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये 2 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका -14. So that become -14. A equals to 1 upon -14. So in this way we get that a is equals to -1 upon 14. अब ऐसी तरह से आप यहाँ पे सेकंड टर्म के लिए x is equals to -1/2 पुट करोगे, you get the value of b. तो b की जो वैल्यू कैलकुलेट होती है that is 1 upon 26 जो मैंने कैलकुलेट की है, बट आप लोगों को वो करके देखनी है फॉर योर प्रैक्टिस. For the third term you have to put x is equals to 5/3 here. When you put x is equals to 5/3 in the same way, so you get a -15/91 for a c. So ये जो हमारी टर्म है, if you consider it, give it equation number 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, therefore equation 1 implies, ये जो सब वैल्यूज आप पुट करोगे ना a b c की in that equation, so a is equals to -1 upon 14, उसके डिनोमिनेटर में 1 minus 2x प्लस b की वैल्यू है हमारे पास 1 upon 26 डिवाइडेड बाय 1 plus 2x प्लस यहाँ पे c की वैल्यू है -15/91. In denominator there is a 3x minus 5. So in this way we write the values of that a, b and c. अब हमारी सभी टर्म सेपरेट हो गई, so we can easily apply the another derivative to that term because all the term अगर आप डिनोमिनेटर देखोगे it is in the form of 1 upon ax plus b. So now we differentiate that. यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या है, y equals to, so equation 1 implies we write y equals to that, and now we differentiate that above function, differentiate with respect to x for how many times, we differentiate that for n times. So what we get here, we get another derivative y equals to, अब जो constant quantity है उसे हम बाहर लिखते हैं, that is -1 upon 14 as it is यहाँ पे लिखेंगे, remaining term 1 upon 1 minus 2x, its another derivative, then plus second term 1 upon 26 as it is, remaining term that is 1 upon 1 plus 2x, its another derivative और last term है हमारी that is -15/91 constant here, और जो function है that is 1 upon 3x minus 5 its another derivative. Obviously हमें अब ये रिजल्ट यहाँ पे यूज करना है, अब हर एक टर्म को इसके साथ कंपेयर करो and then we can write its nth derivative on that side. So how we write that, if you compare with that ax plus b, यहाँ पे अगर देखेंगे आप तो a की जगह क्या दिख रहा है आपको, -2 दिख रहा है. So रिजल्ट क्या रहता है इसका, at yn equals to what we write here, yn equals to पहली टर्म तो -1 raised to n factorial as it is आएंगी, a की जगह यहाँ पे अगर कंपेयर करोगे तो a की जगह -2 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -2 raised to the power n, और डिनोमिनेटर में क्या रहता है that ax plus b raised to n plus 1. So here is a 1 minus 2x raised to the power n plus 1. Then here is minus, ये टर्म as it is रहेंगे -1 upon 40. Then for second प्लस सेकंड टर्म हमारे पास क्या है प्लस 1 upon 26 भी as it is रहेगा, यहाँ पे भी रिजल्ट लगेगा फॉर दैट nth डेरिवेटिव, इसके साथ कंपेयर करोगे तो यहाँ पे a की वैल्यू 2 है, अभी राइट देन -1 raised to n factorial, a की वैल्यू 2 that is 2 raised to n, and here is in denominator 1 plus 2x raised to n plus 1, and then final term -15/91. Here is if you compare that term with that ax plus b, यहाँ पे a की जगह 3 है, so बाकी तो as it is आएगा -1 raised to n factorial, यहाँ पे 3 raised to n, और यहाँ पे 3x minus 5 raised to the power n plus 1. So in this way we write that all another derivative of all these term. एक बार देख लो उससे ध्यान से. So we have write in this way another derivative of that function. Simply next step में मैंने क्या किया है, हर एक टर्म में -1 raised to n factorial यहाँ पे भी और थर्ड टर्म में भी कॉमन है, so I have taken that term common and the remaining term I have written
एज इट इज। तो सिंप्लीफाइड फॉर्म है ये ऊपर के स्टेप का। सो यू हैव टू नोट दैट एंड राइट डाउन इन योर नोटबुक। Comes on next problem of nth derivative. Here the function is y equals to 2x plus 3 by 5x plus 7. सबसे पहले फंक्शन लिख लेते हैं यहाँ पे जो दिया है हमें, that is y equals to 2x plus 3 upon 5x plus 7. Now first you have to check the degree. If you check the degree, here is x, here is also x, single power of x. तो न्यूमरेटर की डिग्री 1 हो गई और डिनोमिनेटर की भी डिग्री 1 है। अब जैसे मैंने प्रीवियस स्टेप में आप लोगों को बताया था कि इफ द डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज इक्वल और ग्रेटर देन द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, देन यू हैव टू यूज देयर डिवीजन मेथड। सो व्हाट यू हैव टू यूज हियर, यू हैव टू यूज द डिवीजन मेथड बिकॉज यहाँ पे डिग्री क्या है, सेम है। तो डिग्री सेम है तो डिवीजन मेथड यूज करेंगे। अब डिवीजन मेथड के लिए थोड़ा सा मैं आपको एक प्रॉब्लम बता देती हूँ। इफ यू कंसीडर दैट प्रॉब्लम, सपोज यहाँ पे 7/5 है, 7 को आप 5 से डिवाइड कर रहे हैं, सो वी कैन राइट दैट कैन बी रिटन एज, वी डिवाइड 5 1 जा 5, सो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2। सो दैट इज नथिंग बट अ क्वोशंट। ये क्वोशंट हो गया आपका, ये रिमाइंडर हो गया, ये हो गया आपका डिवाइजर और ये हो गया आपका डिविडेंड। Now how you can write that 7/5? That 7/5 can be written in this way, that is 1 plus, here is a 5/2। ऐसे फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। So that is a 5, yeah sorry not 5/2, that is a 2/5। मतलब फर्स्ट यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका क्वोशंट, क्वोशंट प्लस यहाँ पे 2 दैट इज अ रिमाइंडर और यहाँ पे आएंगे आपका डिवाइजर। अब आप चेक कर लो यहाँ पे लगे तो हम इसको टैली करके देखेंगे। व्हेन यू टेक अ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन दैट इज 1 + 5 दैट इज 5, 5 + 2, 5 + 2 हो गया आपका 7। सो 7 यहाँ पे आएगा 5, सो दैट इज नथिंग बट 7/5। सो वी कैन राइट दैट टर्म 1 + 2/5 एज 7/5। मतलब ये जो साइड है वो आपको एज इट इज मिलती है। सो हाउ यू कैन राइट दैट 7/5 इन दिस वे, दैट इज क्वोशंट प्लस remainder upon divisor. So in this way we can use that result for that function also. So remember that formula, that is a quotient plus remainder upon divisor, can use that 7/5 or that dividend by divisor. You can write dividend by divisor is equals to quotient plus remainder by divisor. So we can use that result also here. तो ये आप लोगों को मैंने बताया था। आप लोगों को अगला प्रॉब्लम जो हमको करना है, वी हैव टू यूज दैट फॉर्मूला हियर। सो आई हैव रिटन दैट। नाउ अब यहाँ पे डिवीजन मेथड यूज करेंगे हम। सो हम क्या करेंगे, 5x + 7 से 2x + 3 को करेंगे डिवाइड। अब 2x को डिवाइड करने के लिए यहाँ पे तो 5x है, हमें क्या चाहिए, यहाँ पे 2x आना चाहिए। तो 2x आने के लिए हमें पता है कि अगर यहाँ पे हम 2/5 लेंगे, so what about that, when you multiply that 5x into 2/5, so that is 5 get cancelled and finally you get a 2x. so यहाँ पे जो टर्म आएंगे that is a 2/5, so we write here 2x. अब जो नेक्स्ट टर्म है वो भी हमें लेनी पड़ेंगी यहाँ पे। अब यहाँ पे है 7 into 2/5, ये क्या हो जाएगा आपका 14/5, यहाँ पे आ जाएगा आपका 14/5। so in this way we write that। अब यहाँ पे साइन चेंजेस होंगे, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे भी माइनस, ये प्लस माइनस बोथ गेट कैंसल। व्हाट अबाउट दैट, अब यहाँ पे अगर देखेंगे आप 3 - 14/5, हम कैलकुलेट दैट इज 3 into 5 that is 15, 15 - 14/5 that is nothing but a 1/5. so how we get the result of that term, 3 - 14/5 that can be written as 1/5. so how you can write that term now, that y is equals to, that is a 2x plus 3 upon 5x plus 7. You can write the quotient, that is a 2/5 plus remainder 1/5 into divisor 1 upon divisor, that is here we can write 1/5 upon divisor। यहाँ पे डिवाइजर की वैल्यू आपकी 5x plus 7।
So you can write this term in this way, that is a quotient plus remainder upon divisor. We have written again that same formula that just we have seen in a previous step. So we have to use that term in place of that. So we write on that side. So y is equals to यहाँ पे 2x plus 3 by 5x plus 7 की रिप्लेसमेंट अब किससे होगी? That is a 2 by 5 plus यहाँ पे 1 by 5 upon 5x plus 7. अब अगर यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो ये जो टर्म है आपकी ये सेपरेट हो गई इस फॉर्म में. अब ये तो कांस्टेंट टर्म है, यहाँ पे सिंपली फंक्शन है डिनोमिनेटर में 5x plus 7. तो अब इजीली वी कैन अप्लाई द nth डेरिवेटिव टू दैट फंक्शन एज टर्म गेट अ सेपरेट. क्योंकि ऐसे फॉर्म में अगर आपका फंक्शन रहता था तो यहाँ पे आपको nth डेरिवेटिव लेना पॉसिबल नहीं था, बिकॉज इट इज इन द फॉर्म ऑफ ax plus b अपॉन cx plus d. ऐसे फॉर्म में है और इसके लिए हमारे पास nth डेरिवेटिव का कोई भी रिजल्ट नहीं है. अगर सिंपली ऐसा भी रह सकता था 1 अपॉन, सो यू कैन फाइंड द nth डेरिवेटिव. सो सबसे पहले हमें इस फॉर्म में उसको कन्वर्ट करना पड़ा by using that division method, and then we separate in this way. And now we can differentiate. So we write here differentiate with respect to x. Again for n times. We differentiate that functions for n times. तो यहाँ पे आ जाएगा yn. यहाँ पे 2 by 5 its nth derivative plus यहाँ पे 1 by 5 constant है. We can apply the nth derivative to that 1 upon 5x plus 7 its nth derivative. And now we apply the result of 1 upon x plus b. So yn equals to यहाँ पे 2 by 5 is 0, 0 plus 1 by 5. अब यहाँ पे it is in the form of, कौन से फॉर्म में फंक्शन है हमारा 1 upon x plus b. a की वैल्यू है यहाँ पे 5, so यहाँ पे लिखेंगे हम -1 raised to the power n factorial a raised to n. a की जगह 5 है, so 5 raised to n upon here is a 5x plus 7 raised to the power n plus. So in this way we write the nth derivative for that function. Again that same term should be in this form 1 upon x plus b. और इसका nth derivative का फॉर्मूला हमारे पास था, so we have used that. a की जगह यहाँ पे 5, so यहाँ पे आएगा 5 raised to n. So that is nth derivative. यहाँ पे 0 है तो एक स्टेप हम यहाँ पे और लिख लेते हैं, that is 1 by 5 minus 1 raised to n n factorial 5 raised to n upon 5x plus 7 raised to n plus 1. So now we will conclude that lecture here, and next lecture we will continue that the topic.